Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, we are going to start with the new approach of consumer equilibrium, that is indifference curve analysis, which is also called ordinal approach. We have already done about utility approach, in which we have discussed cardinal measurement according to Marshall. Right, and we have discussed how consumer get its equilibrium in one commodity case and in two commodity case. But afterwards, when this theory was developed, many economists were in the conclusion that a cardinal measurement alone cannot satisfy the consumer's behavior. Reason is consumer deal with different commodities. Consumer is not only consuming one and two commodities, he is consuming more. So they have focused on this all criteria and introduced this measurement known as ordinal approach. In this approach, they have decided either comparing the psychological phenomenon which we are having inside, we should have the phenomenon on the basis of rent. Why? Because जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, ये सारे एक्सप्रेशन जो सेटिस्फैक्शन के हैं, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है. इसको नंबर क्रिएट करना इज ओके, बट इन ऑल ओवर अगर हम नंबर से हटके इसको रैंकिंग करें, मीन्स consumer choice is not specified, it is varying, and for this nature अगर हम उसके choices को, preference को रैंकिंग कर दें, तो रैंकिंग करके हमें इजीली पता चल जाएगा कि वो किस गुड की तरफ, कितनी क्वांटिटी की तरफ ज्यादा अपना बिहेवियर शो कर रहा है, and at that point we can easily strike equilibrium. This is why we need to have the new concept that is known as consumer's equilibrium ordinal approach. The basic category is indifference curve analysis. So the preference, the order according to consumer choices in different commodities is called indifference curve analysis. The term itself says indifference means consumer कोई भी bundle उठाएगा out of those combination which he has made for two commodities. Here also we will discuss two commodities, because I said कार्डिनल में ये सबसे बड़ी कमी थी कि वन कमोडिटी लेकर चले, बल्कि वन कमोडिटी में कोई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है इन रियलिटी. तो दो कमोडिटी तो एटलीस्ट उसके पास होनी चाहिए. तो दो कमोडिटीज को लेकर के, दो गुड्स को लेकर के अगर हम देखें तो कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए वो उसकी इच्छा, यानी सारी इच्छाएं हमने किस पे छोड़ दिया, कंज्यूमर पे. और कंज्यूमर जो भी इच्छाएं बनाएगा, उस जो इच्छा के अकॉर्डिंग वो जो कॉम्बिनेशन सेट करेगा, वो सारे कॉम्बिनेशन उसकी खुद की चॉइस के होंगे. वो सिर्फ प्रेफरेंस देगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मैं इसमें ये ले लूं. तो वो प्रेफरेंस जो रैंकिंग वो कर रहा है, इन दैट ऑल रैंकिंग ही विल बी इनडिफरेंट, यानी उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, चाहे वो कोई भी बंडल उठा ले. He will be indifferent. So this is what we are going to discuss. So those who are new on my channel, just do like, share and subscribe it, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. And here we'll start today's session. This is consumer's equilibrium. First of all, we need to understand how this theory developed, how many factors behind it, and what is the actually overall scenario of this theory. So in this theory, we have some introduction part. Accordingly, it was originally developed by Edworth in 1881. Means सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, इस कंसेप्ट को किसने नाम दिया, एडवर्थ ने 1881 में. Later it was developed by Pareto in 1906. यानी इसको फिर पैरेटन इकोनॉमिक्स में लेकर के आया गया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको, उसको और डेवलप किया 1906 में. बट इसको फुली डेवलप यानी फाइनल फॉर्मेट जो दिया वो हिक्स एंड एलन ने दिया 1934 में. यानी ये थ्योरी पूरी तरह से अप्लाइड होने लग गई, समझ में आने लग गई और कंज्यूमर्स के ऊपर जज होने लग गई, एंड दैट टू डेवलप बाय हिक्स एंड एलन. दिस इज व्हाई दिस थ्योरी समटाइम कॉल्ड हिक्स एलन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर. तो ये थ्योरी इस नाम से भी जानी जाती है. राइट, अब ये थ्योरी है क्या, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डरिंग यानी रैंकिंग. इस थ्योरी में हम क्या कर रहे हैं, रैंकिंग. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अब होता क्या है ये समझना है हमको. ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स रैंकिंग द प्रेफरेंसेस फॉर वन कमोडिटी ओवर अनदर.
इट मीन्स जब कंज्यूमर को दो गुड्स लेने जा रहा है या दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बना रहा है तो उस कॉम्बिनेशन में वो रैंक करेगा एक गुड को दूसरे के ऊपर। और ये कैसे होता है? लाइक आप मार्केट में गए, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, अब समझना। आप मार्केट गए, आपके पास पैसे हैं, आपको शॉपिंग करनी है, अब आपको दो गुड्स लेनी है और आपने सपोज एप्पल खरीदा और बनाना खरीदा। अमाउंट फिक्स है, इनकम लिमिटेड है, अब उसी से आपको सारे काम करने हैं। मार्केट में गए, प्राइस पता करी दोनों कमोडिटीज की, एप्पल की और बनाना की। नाउ खड़े खड़े आपने ऑप्शंस बनाने शुरू करिए कि अगर मैं 1 kg एप्पल ले लूं, हाफ केजी बनाना ले लूं तो ये हो जाएगा, और अगर मैं 2 kg बनाना लेके हाफ केजी एप्पल ले लूं तो ये हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस आपने फटाफट सेट कर लिए और फिर इस सेटिंग में आपने डिसाइड किया अच्छा रहेगा कि मैं एप्पल ज्यादा ले लूं, बनाना कम ले लूं, क्योंकि बनाना खराब हो जाता है। ये आपके सोच में आया तो आपने उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर ली प्रेफरेंस किसकी, एप्पल को ज्यादा लेने की ओवर बनाना, राइट। सो दैट यू हैव डिसाइडेड, दैट रैंक यू हैव डिसाइडेड। और अगर आप बनाना और एप्पल में बनाना ज्यादा भी लेके जाते तो वो भी आपके दिमाग में था, ऑप्शन था। मीन्स आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते वो सब आपको इक्वली सेटिस्फाई करते। अब इक्वली सेटिस्फाई क्यों करते? क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन पे आपकी इनकम बराबर खर्च होनी थी और फ्रूट्स आपको लेने थे। तो एप्पल बनाना का एक कॉम्बिनेशन जैसे भी आपने सेट किया उसमें आपने किस कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दी ओवर अनदर, किस गुड को प्रेफरेंस दी ओवर अनदर। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट इज इंडिकेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये थ्योरी भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है। ये तो हो गई जनरल पार्ट इंट्रोडक्शन की। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी बिना अजम्पशन की होती नहीं है, so here we tune with assumption. So here we have few assumptions for this theory in difference curve analysis. The assumptions are consumer behavior should be rational. Again the same thing, because we know consumer का behavior with his income, with expenditure, within the market prices should be rational. उसे सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं, ऐसे ही गया और लेकर के नहीं आ गया। मीन्स सिर्फ फालतू नहीं जा रहे हैं, मार्केट गए लेके चले आए। वी नीड टू थिंक ओवर इट, वट एवर वी आर गोइंग टू परचेज इज एक्चुअली वर्थ ऑफ मनी, is actually according to our budget, our income or our expenditure behavior. That all should be set in the mind of the rational consumer. That time it will be considered as rational consumer. So rational consumer means who can think positively, he can decide the consumption and can get the satisfaction. ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर भी हमने जज कर दिया, like मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। एबनॉर्मल मेंटली डिसऑर्डर जो लोग होते हैं उनके अंदर सोचने की पावर नहीं होती है, यानी अगर उसको कुछ भी दे दो उनको सेटिस्फेक्शन पता ही नहीं चलेगा। तो कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो ये जान सके कि उसको इसके कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो कंज्यूमर शुड बी रैशनल। सेकेंड असम्पशन इज ऑर्डिनल मेजरमेंट, मीन्स रैंकिंग होनी चाहिए वेयर कंज्यूमर इज एबल टू प्रेफर वन कमोडिटी ओवर अनदर। मीन्स कंज्यूमर को प्रेफरेंस देनी आनी चाहिए, रैंकिंग करनी आनी चाहिए, ऑर्डर दे करना आना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो किसको पहले ऊपर रखे और किसको वो नीचे रखे, आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो गुड्स लेने जा रहा है उसके बीच में, लाइक मैंने अभी बताया आपको एप्पल और बनाना का। नेक्स्ट, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस है क्या। मीन्स अगर आप मार्केट में गए, अब आपने फ्रूट्स, मैंने आपको एप्पल बनाना बोले थे, मैं एक और ऐड कर देती हूँ, एप्पल बनाना ऑरेंज, राइट। तो अब आपके 3 गुड हो गए, एप्पल बनाना ऑरेंज, राइट। अगर आप एज अ रैशनल कंज्यूमर डील करने जा रहे हो मार्केट में और आपको 2 ही गुड लेनी है ना, तो आपने ए को प्रेफर किया बी पे, यानी एप्पल को प्रेफर किया बनाना पे, राइट। फिर क्या हुआ, अगर आपके पास एप्पल ऑप्शन में नहीं होता तो आप क्या करते, बनाना को प्रेफर करते ऑरेंज के ऊपर। अंडरस्टूड? यानी आप 3 कॉम्बिनेशंस बनाने जा रहे हो, अब उसमें ट्रांजिटिविटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है कि हमें यही करना है। एप्पल को प्रेफर किया बनाना पे, अगर एप्पल नहीं है तो बनाना को प्रेफर किया ऑरेंज पर। अब जो थर्ड आप सेट करोगे तो वो हमेशा आपका ये रहना चाहिए। अगर बनाना नहीं है तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस किस पे थी, एप्पल पर, राइट। तो वापस जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, यानी 2 गुड्स को अगर ऑप्शन मिलता है, बनाना मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप एप्पल ही ज्यादा लोगे ओवर ऑरेंज। आई बात समझ में?
दोबारा समझा देती हूँ। आप माइंड सेट करके गए मेरे पास इनकम में 2 फ्रूट्स लेके आनी है, अगर एप्पल और बनाना मिल जाए तो वेरी गुड, एप्पल नहीं, सबसे पहली प्रेफरेंस एप्पल ही है आपकी, ठीक है, एप्पल और बनाना मिल जाए तो वेरी गुड। अब ये भी सोच के चल रहे बाई चांस एप्पल नहीं मिला तो बनाना ले लूंगा और ऑरेंज ले लूंगा, पर बनाना फिर प्रेफर करोगे, यानी बनाना पहले दिमाग में आया। फिर आपने सोचा कि बनाना नहीं मिला तो क्या करूंगा, तो मैं एप्पल ज्यादा ले लूंगा और ऑरेंज कम ले लूंगा। तो यानी कि आपका जो प्रेफरेंस लेवल था वो एप्पल पे था पहले से ना, तो एप्पल ही आप थर्ड कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करोगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। कंज्यूमर ऑलवेज ट्रांजिटिव बिटवीन द कॉम्बिनेशन, ही ऑलवेज प्रेफर ए टू बी, बी टू सी या बी टू ओ हम ये लिख देते हैं, या इसको सिंपल कर देते हैं सी, आप इसको ऑरेंज ही समझना, राइट। सो ही ऑलवेज प्रेफर ए टू बी, बी टू सी, देन ही मस्ट प्रेफर ए ओवर सी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। So there, this is called transitivity of choice. अब वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेगा, वो हमेशा हर कॉम्बिनेशन में इक्वली सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी प्रेफरेंस पे ही बन रही हैं। नेक्स्ट, इट इज गाइडेड बाय दिस एनालिसिस इज गाइडेड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक और आ गया लॉ, पहला लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच वॉज अप्लाइड इन कार्डिनल अप्रोच। अब इसमें अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रेफरेंस आ रही है ना एक के ऊपर दूसरी, तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, ए अगर मैं ज्यादा ले रही हूँ तो बी सब्स्टिट्यूट किया, बी ज्यादा ले रही हूँ तो सी सब्स्टिट्यूट किया, और फिर जब ए वापस लेने गई तो सी को सब्स्टिट्यूट किया। तो यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही बिहेवियर है जिसपे लॉ बनेगा और उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। So after all, we get to know that what is the exact definition of IC. Here is the definition. An indifference curve shows various combination of two goods, two commodity, which give equal satisfaction to the consumer. इस definition को लिख लेना है आपको, पहले मैं समझा देती हूँ। इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि कंज्यूमर जो 2 गुड के कॉम्बिनेशन बना रहा है, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को वो ले या कोई भी कॉम्बिनेशन पे जाए, ही विल बी इनडिफरेंट, मीन्स उसको हर कॉम्बिनेशन से बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लाइक हेयर, वो कोई भी सिलेक्ट कर ले, उसको हर बास्केट से, हर कॉम्बिनेशन से, हर बंडल से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। So this is what IC says. Indifference curve, various combination of two goods which give equal satisfaction to the consumer. Write down the whole, then we'll move to its diagram schedule. So now we'll discuss indifference curve schedule or indifference map, which is a general feature while we are drawing with indifference curve, right? तो indifference curve schedule क्या होता है? Because sometime you will be asked, what do you mean by indifference schedule? So indifference schedule is typically known as the tabular presentation of the combination of two goods which consumer is going to consume and which give equal satisfaction to the consumer. So here you need to understand the same definition which you have done already for IC. You have to just add on, this is the tabular presentation of the combination of two goods which is giving a equal level of satisfaction to the consumer. So here is the definition. Tabular presentation showing the combination of two goods which give equal satisfaction is called indifference schedule. मैंने short में लिखा है, you can understand here already written. IS indifference schedule. तो अब ये क्या है? ये आ गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? हमने रोज एंड कॉलम्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख दिया। तो रोज एंड कॉलम्स में जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल। तब क्या है? ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कंज्यूमर ने। कैसे बनाए? 2 गुड से, एप्पल और बनाना, इसको हम मान लेते हैं। लाइक दिस कैन बी सेड एज एप्पल एंड दिस कैन बी सेड एज बनाना, राइट। तो कंज्यूमर ये 2 गुड्स लेने के लिए जा रहा है मार्केट में और उसके अकॉर्डिंग उसने सेटिंग कर ली है कि अगर मैं बनाना 15 लूंगा तो 1 एप्पल लूंगा, क्योंकि एप्पल ऑब्वियसली महंगा होता है कंपेयर टू बनाना। सो ही विल डिसाइड द कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, और इनकम के बेसिस पे जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो ये सब हैं, और उसको पता है कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा
उसको हर लेवल पर बराबर यानी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन उसी ने ही बनाए हैं, उसी की प्रेफरेंस है, उसी ने ही डिसाइड किया है कि वो यहाँ बनाना ज्यादा लेगा कि एप्पल ज्यादा लेगा, कि यहाँ एप्पल ज्यादा लेगा और बनाना कम लेगा. दैट्स ऑल हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस. राइट, सो हेयर ही इज ऑर्डरिंग, और कोई भी ऑर्डर वो सेट करे, कोई भी कॉम्बिनेशन सेट करे, ही विल हैव इक्वल सेटिस्फैक्शन. इक्वल क्यों हुआ? रीजन इज ये सभी कॉम्बिनेशन से उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी ही होगी, चाहे वो कोई भी एक बंडल उठा के ले जाए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी ही है. सो दिस इज कॉल्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन. अब इसी बात को जब हम डायग्राम में शो करेंगे तो ये कहला जाएगा इनडिफरेंस कर्व. इसलिए डेफिनेशन हमने यहां लिख दी है पहले ही, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंट शेड्यूल, यानी ये जो इंफॉर्मेशन है इसको अगर हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शो करेंगे तो ये बन जाएगा इनडिफरेंस कर्व. अब ये बनता कैसे है ये हमें सीखना है. राइट, इसलिए मैंने इसको अभी इनकम्प्लीट छोड़ा. सबसे पहले हमेशा याद रख लो, कोई भी डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है, तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप समझते जाओ कि ये एक्सप्लेनेशन का ही हिस्सा है. सबसे पहले ओ एक्स एक्सिस शोज गुड एक्स, ओ वाई एक्सिस शोज गुड वाई, यानी ओ एक्स पे मैंने क्या दिखाया है? गुड एक्स दिखाई है, और ओ वाई पे मैंने दिखाया है गुड वाई. तो ये हमने बता दिया. गुड वाई की कॉम्बिनेशन इस तरह से है, बट क्योंकि जब हम मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं इसको, तो जो कॉम्बिनेशन है, जो पैरामीटर है स्केलिंग, वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, इसलिए हमने 3 के रेशियो पे इसको सेट किया है और 1:1 के रेशियो पे इसको सेट किया है. अब हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन के डॉट्स, यानी कि दोनों कहाँ मिल रहे हैं उसके डॉट्स बनाएंगे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग x कमोडिटी 1 है और y कमोडिटी 15 है, तो यानी x का 1 और y का 15, तो पहला डॉट यहां बन गया. सेकेंड डॉट 2 एप्पल 11 बनाना, 2 हेयर 11 विल बी हेयर, तो ये यहां गया और ये यहां गया 11 के लिए, तो 11 थोड़ा सा नीचे ये बन गया. क्लियर? नाउ थर्ड 3 and 8, 3 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 8 यूनिट ऑफ बनाना, 9 के नीचे 8 and 3, सो दिस इज हेयर. ये बन गया हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ये लिखते जाए हम, कॉम्बिनेशन ए, दिस इज बी कॉम्बिनेशन, दिस इज सी. नाउ फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो सिक्स्थ इज हेयर एंड फोर्थ इज हेयर. सिक्स्थ एंड फोर्थ के कॉम्बिनेशन पे हमारा बना ये, तो ये बना आपका डी कॉम्बिनेशन. लास्ट है 5 5 5 2 ईच, तो ये 5 ये रहा और ये 5 ये रहा, ये बन गया आपका ई कॉम्बिनेशन. अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम जोड़ देंगे we will get our graphical, sorry थोड़ा सा मूव हो गया, we will get our graphical presentation. तो इसके अकॉर्डिंग आपको आईसी बनाना होता है. तो ये इस तरह से, अब आप सीख गए ना आईसी बना कैसे, ये इनडिफरेंस कर्व बना कैसे. अभी कैसी शेप में जा रहा है, इसको अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. तो ये कैसा बन रहा है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. ये बात ध्यान रखनी है. इस कर्व की शेप ऐसे जा रही है, ये हमें समझ में आ गया, इस तरह से बनेगा. तो अब मैं इसको एक फ्री हैंड कर्व का नाम शेप दे देती हूँ, दिस विल बी लाइक दिस. सो फ्री हैंड कर्व मैंने अब इसको बना दिया. समझ में बात हमें आ गई. 15 से स्टार्ट हुई, 5 पे एंड होगी. ये हमारे कॉम्बिनेशंस बने ए बी सी डी ई. अब इसी पॉइंट पर हमारा ये आईसी कर्व तैयार हो गया, इनडिफरेंस कर्व रेडी हो गया. कैसे बना? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंट शेड्यूल. इस इंफॉर्मेशन पर, इस टेबुलर फॉर्म को हमने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया, तो हमारा ये बन गया. और कैसा बना? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. अभी कॉन्वेक्स क्यों होता है? एजम्पशन का फोर्थ पार्ट क्या था? इट डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्वेक्स होता है, और वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये लॉ होता क्या है. राइट, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे बन गए. एक बार हम इसको दिखा देती हूँ मैं क्लियरली आपको. ये आपके यहाँ बन रहे हैं, ये बना आपका 8 का, फिर ये आपका 4 का, और ये बन गया आपका 5 का. ये इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन सेट हुए हैं और ये आईसी फ्री हो गया. सो दिस इज कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व. अब चलते हैं मैप. मैप क्या है? इट्स अ फैमिली ऑफ आईसी, यानी दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन सब आ गए. इसका मतलब इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ आईसी. अब इसको बनाना कैसे है वो आप सिंपली देख लो, इजी है. अब मैं फ्री हैंड कर्व बना रही हूँ, हमें समझ में आ गया आईसी कॉन्वेक्स बनेगा, तो फ्री हैंड बना रही हूँ सीधे सीधे. और हमेशा याद रखो एक्सिस को लिखना जरूर है कि आप इन एक्सिस पे
दिखाने क्या वाले हो। तो गुड X, गुड Y वी आर गोइंग टू शो। नाउ विल मेक अ फैमिली। दिस इज IC1, IC2, IC3 and IC4. So this is how IC curves when all together will be showing in a one diagram is called IC map। और ये सब उन्हीं दो कमोडिटी के बने हुए कॉम्बिनेशन है। पहला सेट ये था, एक और सेट बनाया, एक और सेट बनाया। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई कंज्यूमर के सेट्स बदलते गए, कॉम्बिनेशन बदलते गए। तो ये सब डिपेंड करेगा आईसी फैमिली बनने में, और इससे बन जाता है हमारा आईसी मैप। और याद रखो जितना ऊपर आईसी उतना हायर सेटिस्फेक्शन, ये सबसे बड़ी बात है। IC2 is higher, IC2 giving higher satisfaction to the consumer compared to IC1. IC3 giving higher level of satisfaction compared to IC2. IC4 give much higher level of satisfaction compared to IC1. तो हम क्या लिख सकते हैं? IC4 is greater than IC3, then IC2 and then greater than IC1। यानी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस पर है? IC4 पे, और सबसे लोएस्ट सेटिस्फेक्शन IC1 पे। अब ऐसा क्यों हुआ? जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे, फिर इनकम अगर और बढ़ी, आपके पास और पैसा है तो आपके कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। तो इस तरह से आईसी मैप तैयार हो जाएगा। तो आईसी मैप की डेफिनेशन क्या बन गई? अ ग्रुप ऑफ आईसी represented in a single diagram is called IC map। family of IC which give equal satisfaction। फैमिली है पर सब बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे, कुछ भी उठा के लाओगे आपका पेट भरेगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड आईसी मैप। सो दिस इज हाउ वी हैव टू क्रिएट इट। सो जल्दी से तीनों चीजों को लिख लीजिए, तीनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गए। इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, राइट। फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। Alright, so this is all about today's session. We have discussed about the introduction part, assumption, definition of IC, indifference schedule, indifference curve, indifference map. These are the basic information which is always required to understand IC for consumers equilibrium. Once you will understand it, you will definitely able to crack your equilibrium for consumer. Right? So that's all for today. In next video, we will meet with law of diminishing marginal rate of substitution, which is very important to determine the shape of IC, and the shape of IC is convex to the origin। और एक और चीज जो ऐड करना रह गया, that is downward sloping। कैसा है? downward sloping from left to right। देखो downward sloping हो रहा है left to right, left to right, downward sloping। ऊपर से नीचे की तरफ आया, लेफ्ट से राइट की तरफ आया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व होता है वो नेगेटिव रिलेशन शो करता है, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक का फॉल दूसरे का गेन है, एक गिर रहा है तब दूसरा बढ़ रहा है, यानी दो गुड्स ऑपोजिट चलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर लिमिटेशन, कंज्यूमर की इनकम की लिमिटेशन होने की वजह से। तो गुड्स का कॉम्बिनेशन ऑपोजिट ही चलेगा, एक फॉल होगा तभी दूसरा बढ़ेगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है आपके कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना। दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। सो दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड आईसी कर्व। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईसी। इससे और भी हमें एडवांस इसकी डिस्कशन हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ features of IC, यानी कि characteristics of indifference curve. So for this we'll meet in next video. Till then, bye bye.